Good morning, Namrata Didi. Deepika, what should be the second form of cat? The second form of get should be got. Nisha, what should be the third form of get? Okay, Shivang, what should be the third form of get? The third form of get should be got. Namrata Didi, what should be the verb for पहुंचना पहुंचाना The verb for पहुंचना पहुंचाना सॉरी what should be the Please come again, Namrata. Your voice is not coming. what should be the verb for reach? Please come again, Namrata. What should be the verb for reach? Namrata has lost everything What should be the second form of reach? because of being absent. The second form of reach should be reached. Shivang, what should be the third form of reach? the third form of reach should be reached Namrata Didi what should be the another verb for पहुंचाना The another verb for पहुंचाना should be approach. Wait, Namrata. Namrata, you got 3D. Deepika will give 3D firstly. No, do one thing. Deepika will speak one, then you speak one, Deepika speak two, like this. You both are sleeping. Shivang is using pahunchana again and again in Hindi. जी That's why. okay. पा छोटा पा हा में छोटी ऊ की मात्रा हु ऊपर बिंदी चा छोटा चा ना में आ की मात्रा You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते हैं. When the God keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया मार सके ना कोई. Tit for tat. जैसे को तैसा. Good mind, good find. आप भला तो जग भला. As it is जो का त्यों. नम्रता As it is जो का त्यों. नम्रता you are not clearly audible, your voice is breaking. As it is ज्यों का त्यों. Namrata Didi what should be the another verb for पहुंचना Shivang, the another verb for पहुंचना should be approach. Deepika, what should be the second form of approach? The second form of approach should be approached. Shivang, what should be the third form of approach? the third form of approach should be approached Namrata Didi what is reach Shivang, the reach is noun above. Reach is a noun. Deepika, what is the Hindi meaning of reach? The Hindi meaning of reach is पहुंच.
Uh, Shivang, what is approach? Approach is also now. Deepika Didi, good Good morning, morning. Shivang. Shivang, good morning. Okay. Namrata Didi, what is the Hindi meaning of approach? Of approach is पहुंच. Deepika, have you written it all? Deepika, have you written it? Have you Yes, I written have that? written. Yes, I Okay. have written that. Should I erase second one? Yes. Yes, you should erase second one. Shivang, Wait. I'm asking one question. Please answer if you are ready. How can you get success? Who is ready? I can get success by my hard work. आप सफलता कैसे पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते मैं मेरे कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकती हूँ. हैं? Now you will have to ask who is ready. Who is ready? I'm ready. Namrata, you are not clearly audible actually. I'm ready. Okay. Okay, I'm ready. Ask me. How can you get success? Well, Deepika, I can get success with the proper preparation of any aim, plus hard work, plus determination. Good morning, Deepika Didi. Okay, Shivang. How can you get? Okay, sorry, हिंदी. सर, आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दीपिका, मैं किसी भी लक्ष्य की विधिवत तैयारी, परिश्रम एवं समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता हूँ. Preparation, proper preparation, hard work and determination. Now who is ready? Namrata left. Only two guys are there, Deepika and Shiva. सर, कहना है? Yes, you can give two more than two answers. Okay. How can you get success, Deepika? First of all, I can rectify my weaknesses. After that, I will work in that, and I get uh, success. Deepika, rectify and weakness is not a good combination. Remove and weakness is a good combination. By removing my mistakes. Sorry, rectifying my mistake is a good combination, but by removing my weakness or weaknesses. Okay. Uh, First of all, I rectify my mistakes. After that, I will uh, do the work in that, and I
gets I can get success. I can, I think it's Uh, do we need to complete the process? If you want, I can complete. no, sir, no, no. Okay. Namrata, how can you get success? Deepika, I can get success with the focus uh, towards aim and determination towards our aim, and also hard work. Hard work is a very important thing to get success. You can overcome from the problem whatever you get in your way, so we can get success. It is my opinion. Shivang, how can you get success? Didi, I can get success by rectify my mistakes, by doing hard work and in proper preparation for anything and doing all the things what I do for success. I can try my level best. ये जो भी खांस रहा है, कृपया माइक बंद करके खांसे। सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि खांसने के पहले माइक बंद कर लें। धन्यवाद। Sir, how can we use reach as a noun? बेटा, we already use reach as a noun in Jabalpur so much. Okay, I'm giving you one English example. Yeah, I'm sorry. This is out of my reach. माफ करना यार, ये मेरी पहुंच से परे है। And approach, sir. अप्रोच, When हाँ, we आई call वॉज to टॉकिंग somebody, एक्चुअली। हाँ, और बर्थडे अपनी तो ऊपर तक अप्रोच है। 2 मिनट में कोई भी काम अपन करा देंगे। बताओ तो हमारा नाम बता देना खाली। बहुत ऊंची अप्रोच है बेटा। हैव यू हर्ड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन जबलपुर? Now who is ready? वन मोर सेंटेंस, आई एम गिविंग एग्जांपल। अरे, वो कोई काम का नहीं था, अप्रोच के कारण उसकी नौकरी लग गई। तुम लोगों को कोई ऐसा उदाहरण ध्यान आ रहा हिंदी में जो बोला जाता है तो बताओ। सर रीच का तो फोन करने में whenever we call to somebody and his या her phone is unreachable, computer said Thank you, this thank you. person is Nice unreachable. example. I will comprehend this example to give to the students. Approachable, many times I heard that various people says, oh, Saruk Khan has a great approach, but this is other thing. This is not working in these days. Yes, in the connection of his son. Hmm. I'm giving you one more example. Generally, I use in class, but I forgot. Now I got it. If you want to make beautiful sentences, there should be a proper approach, like Shivang. Shivang has developed his approach. That's why he can make big sentences, nice sentences, blah blah blah.
This is the spelling of blah blah blah. Are you surprised? This is English word. If your CC is on, you can write down this spelling. Generally, this word is spoken twice and blah blah. BLAH, BLAH. Should we go ahead? Yes, sir. We should go ahead. I'm giving you one more practice round. I'm starting with Shivang. Shivang, can you reach the station within 5 minutes? Yes or no, whatever you want. Yes, sir, I can reach station within 5 minutes. क्या आप 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकते हैं? हाँ सर, मैं 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकता हूँ. I did not listen article the, so please ask the question and put the station. Deepika Didi, can you reach the station uh, at 5 minutes? You are using wrong. Beta, you are not focused. I think you are having something, your focus is in having. Deepika or Namrata, any one of you can ask? Can you ask the same question? Deepika, can you reach the station within 5 minutes? Absolutely correct. Yes, Namrata. I can reach the station within 5 minutes. 5 minutes. दीपिका, क्या शिवांग? आप 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकती हैं? हाँ नम्रता, मैं 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकती हूँ. If you शिवांग? want to, Deepika, if you want to change the object and subject, you can change if you want. Shivang, can you reach the station within 5 minutes? Sorry. This mistake occurs again and again. Okay. OCCURS. This mistake occurs again and again in every way, Shivang, you know. That's why we call it silly mistake or stupid mistake, whatever you. Deepika suggested me silly mistake, so I'm using silly mistake. Shivang, can you reach the station within 5 minutes? No, Deepika Didi, I cannot reach the station within 5 minutes because I am not ready. शिवांग, क्या आप 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकते हैं? नहीं दीपिका दीदी, मैं 5 मिनट में स्टेशन नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं तैयार ही नहीं हूँ. निशा दीदी, can you reach the station within 5 minutes? Yes, Shivang, I can reach the station within 5 minutes. Wow, what a sound clarity. निशा दीदी, क्या क्या आप 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकती हूँ. Who is rest? 5 guys are rest. I am rest. Deepika or Neha, can you reach the station within 5 minutes? बेटा एक चीज दीदी, पूछना who था. is नेहा दीदी? हाँ बेटा, वही मैं पूछने वाला था. जैसे हमारे मोबाइल में तो सब, जब हम पूछते हैं क्वेश्चन आंसर तो अपनी स्क्रीन छोटी कर देते हैं, तो हमें दिखता है हमारे मोबाइल में
तुम जरा चेक करो तुम्हारे मोबाइल में सब दिखते हैं कि नहीं। जैसे दीपिका पिंक कलर का सूट पहने हुए दिख रही है, नम्रता येलो कलर का सूट पहने दिख रही है, तो तुम्हारे उसमें दिखता है बेटा? नहीं, अनपिन करने से डबल टैप और सिंगल टैप से भी आप स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और वो एक पिन का निशान यहाँ दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो आप स्क्रीन को छोटा कर लोगे तो अपन देयर आर ओनली 6 people टुडे. Madam is recording, that's why madam's picture is on the screen. निशा तुम्हें देख रहे हैं सब लोग जितने भी हैं? अगर कुछ कर रही हो तो कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बाद में तुम पूछ लेना जब फ्री हो जाओ तो, जैसी इच्छा हो। मतलब अगर बिजी हो तो मत पूछो। Rest. Sir, no ambiguity. दोस्तों अपन एक काम करते हैं, निशा को कच्ची लोई मान के चलते हैं, उसका ध्यान नहीं रहता, बच्चे अच्छे परेशान करते होंगे, तो अपन आगे बढ़ जाते, नहीं तो अपना ऐसे राउंड अटक जाएगा। Deepika, listen my question carefully. Finally, who approached the destination? Sir, finally, Mr. Kabir Khan approached the destination. आज शायद नेटवर्क गड़बड़ है दीपिका, या फिर हो सकता है शिवांग ने नाम चेंज कर लिया हो। शिवांग, तुमने अपना नाम दीपिका रख लिया क्या बेटा? No, sir. तुमने देखा नहीं दीपिका दीदी अनम्यूट करने जा ही रही थी आंसर देने के लिए, अचानक आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। चलो तुम आगे बढ़ा दो राउंड। Deepika Didi, finally, who approached the destination? Finally, Nidhi approached the destination. 1 मिनट में हिंदी कंप्लीट कर लूं आकाशवाणी के चक्कर में। थोड़ा कठिन हिंदी यूज कर रहे हैं बेटा, सुन लेना। अपने पेन वेन को सब एक तरफ रख के, और जितना खाने का बचा है उसको बिल्कुल ध्यान से मत देखना, रुमाल से ढक के रख दो। अंतत्व गत्वा कौन मंजिल पर पहुंचा? सर, अंतत्व गत्वा कबीर खान मंजिल पर पहुंचा। दीपिका दीदी, अंतत्व गत्वा कौन मंजिल पर पहुंचा? अंतत्व गप 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 आखिरी में निधि अपनी मंजिल पर पहुंची। नम्रता, finally who approached the destination? The person who is hardworking reach the destination. अंतत्व गत्वा कौन अपनी मंजिल पर पहुंचा? वो जो हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो लोग अंततो गत्वा वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। अब नम्रता तुम नेहा का नाम लेके पूछ लो, नेहा है नहीं लेकिन पूछ लो। Finally, who approached the destination? ओके, यू कैन आस्क मी। Sir, finally, who approached the destination? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज कम अगेन।
Finally, who approached the destination? Finally, Neil Armstrong approached the destination. अंततो गत्वा मंजिल पर कौन पहुंचा? अंततो गत्वा नील आर्मस्ट्रॉन्ग मंजिल पर पहुंचा. Shivang, what was the last idiom, please? So the last idiom was tit for tat. That is जैसे को तैसा. बेटा एक ही उत्तर दिया करो ताकि दूसरे प्रश्न के लिए अपन आगे वाले को संबोधित कर सके, है ना. जैसे तुम आगे दीपिका दीदी से पूछ सकते थे कि दीपिका दीदी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिट फॉर टैट. Deepika, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was as it is. Namrata, what is the meaning of last interactive sentence? What was the meaning of last interactive sentence? Deepika, the Hindi meaning of last interactive sentence was ज्यों का त्यों. Shivang, what is the meaning of it sucks? Didi, I get firstly asked to Deepika Didi. Deepika, what is the Hindi meaning of it sucks? The Hindi meaning of it sucks is ये परेशान कर रहा है, something like that. बच्चों, it is not easy to guess. Only Shivang knows. He will tell you. Deepika, you ask the question. Deepika asked this question like this. Can you guess the meaning of it sucks? Shivang, can you guess the meaning of it sucks? Yes, Deepika Didi, I can guess the meaning of it sucks. That is लाई लुट गई. Deepika Didi. Wait. लेडीज, हो सकता है आपने ये वाला हिंदी ना सुना हो. जबलपुर के पुरुषों और लड़कों के मुंह से बोला जाता है. केवल सिर हिला के जवाब देना. दीपिका, नम्रता सुना है? दीपिका ने 9 में जवाब दिया. नम्रता ने. सर एक गाना जरूर सुना है, लाई भी ना गई तन्हाई भी ना गई. सुना है मैंने लाई वर्ड. शाहरुख का गाना. तो ये जबलपुरिया मीनिंग है. ये वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस हम जब भी देते हैं क्लास में तो सारे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं. आजकल जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो भी ये जानती हैं. जबलपुर में इसका जन्म हुआ था. लेकिन आप इसके साइड में ब्रैकेट में लिख लो. हम एक हिंदी बोल रहे हैं और कुछ दूसरा अच्छा लिखने लायक बाद में बोलेंगे. ऐसी तैसी हो गई, ये भी भाव है उसका. ये लिखना चाहो ये लिख लो. नम्रता, पावर इज कट राइट इन योर प्लेस. और ऐसा भी लिख सकते हो, सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया. ऐसा भी लिख सकते हो. और मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि इस मुहावरे का एक्चुअली ये इडियोमेटिक मीनिंग. ये वाक्य आपको जबलपुर के बाहर कहीं नहीं सुनने मिलेगा दोस्तों. लेकिन मैंने इसको देखा है, फील किया है. आई एम द विटनेस. अर्लियर आई यूज्ड टू लिव इन दीक्षितपुरा. पहले मैं दीक्षितपुरा में रहा करता था. माय फादर वाज पोस्टेड इन पाटन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल. तो वो सुबह से बस से चले जाते थे पाटन, अप डाउन करते थे.
तो मोहल्ले में कहीं पे भी गमी होती थी तो घर का बड़ा लड़का होने के नाते मुझे मिट्टी में जाना पड़ता था। मैं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो दीक्षितपुरा या इस एरिया में कहीं पे भी गमी होती थी तो रानी ताल शमशान घाट ले जाते हैं, वो नजदीक पड़ता है। और मिट्टी को उखरी रास्ते से लेकर जाया जाता था, आगा चौक से नहीं जाते थे, 2 रास्ते हैं। तो इस तरफ से जाते थे, ये थोड़ा नजदीक पड़ता था। उखरी रोड उस समय बहुत सकरी थी और लेफ्ट साइड में नाला हुआ करता था जाते समय। और उस नाले के उस तरफ अन्ना लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं वो बड़ी संख्या में। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, मैले कुचेले, नाक बहती रहती और छोटे फटे हुए कपड़े पहने। तो एक चीज तो, हालांकि महिलाएं मट्टी में शामिल नहीं होती, लेकिन शायद मालूम होगा कि एक पैकेट में लाई रहती है, उसमें कुछ फूल डाल दिए जाते हैं और चिल्लर डाल दी जाती है। पहले 10 सिपंजी डालते थे, आजकल सिक्के जो भी मिल जाते हैं। ये पता है तुम लोगों को? नम्रता, दीपिका, केवल सिर हिला के जवाब दे देना। ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बाकी लोग बोलते हैं सत्य बोलो मुक्ति है। तो ऐसे लाई डाली जाती, आज भी चलता है वो। उसकी जगह फूल लेते जा रहे हैं, लेकिन लाई थोड़ी मात्रा में अभी भी रहती। तो घटना हमने जब देखी है वो ये है कि जब वहां उस एरिया से मिट्टी गुजरती थी तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल अबोध बच्चे रहते थे, उनको ये सब जन्म मृत्यु कुछ पता नहीं। वो तेजी से घुसते थे, इतने सारे लोग जा रहे हैं लेकिन उनको कोई वो नहीं, वो घुसते थे और वो जो पैसे गिरते थे उनको ऐसे झपट लेते थे या लूट लेते थे एक तरह से। और फिर वो उनके टॉफी खाने के, आइसक्रीम खाने के और ब्ला 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 वो काम में आ जाते थे। माँ बाप उनको समझाते होंगे सब कुछ है, लेकिन बच्चे तो बच्चे, बालपन, किड्स आर किड्स, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। तो संभवतः इस मुहावरे का जन्म ऐसी स्थितियों को देख के जबलपुरिया हुए होंगे। अब हम सर, एक छोटी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में थी लगभग 6 साल, मेरी हाँ बेटी वहीं पैदा हुई है। वहां पे कोई भी जब नया कुछ भी अच्छा होता है तो वो या तो महिलाओं का जब गोद भराई होती है या कोई छोटी बच्ची होती है या किसी का बर्थडे होता है तो कहीं पे ऊंची जगह पे बच्चे को बिठाते हैं या मदर को बिठाते हैं और उनके ऊपर ना वो लाई गिराते हैं, उसके साथ पैसे, टॉफी, छोटे बच्चे सब, बड़ी औरतें भी, वो सब छीन के लेते हैं। तो वहां पे भी ये वर्ड यूज करते हैं, लाई लुटाना। वो अच्छा, थोड़ा सा अलग, मेरे को अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, लेकिन हिंदी में उन्होंने मुझे बताया कि दिद्दू का, बेटी का मेरी एक बार किया था, वही लोगों ने किया था कि हाँ। दिद्दू का लाई लुटवाएंगे यहाँ पे, तूने कुछ नहीं किया करके, बच्ची पैदा हुई तो उन लोगों ने करवाया था मेरे से, तो मैंने किया था। This is a very good information. Thank you, Deepika. This culture, I was not aware of this culture. But here in Jabalpur, the meaning is negative, and whatever you are telling is for happiness. Okay. I'm asking one question to Shivam. It is not related to Namrata and Deepika because I have not given you these chapters. But I will ask this question constantly, regularly. Shivang, which chapter is this sentence related? So this sentence is related to present simple. Absolutely correct. दीपिका जी से इसे पूछो इंग्लिश में, करता क्या कौन सा है इसमें? Didi, what is the subject in this sentence? It is a subject in this sentence. Namrata, what is verb in this sentence? is the verb in this sentence. अगला सवाल मैं शिवांग से पूछ रहा हूँ, नम्रता वेट।
ध्यान से सुनना, आगे तुम लोग के काम में आएगा। शिवांग, what is the helping verb here? So there is no helping verb. You can see here. यहाँ सहायक क्रिया कौन सी है शिवांग? सर यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है। नम्रता दीदी, what सेम क्वेश्चन पूछना नम्रता दीदी से, और नम्रता दीदी पूछेंगे दीदी को। what is the helping verb here? Your voice is not clearly coming. You are not audible. There Please is speak. there is no helping verb in in this idiom. Deepika, what is the helping verb in this? Where is the helping verb in this idiom? There is no helping verb in this interactive sentence. Now listen carefully. Shivam, what is the main verb here? The suck is the main verb here. देखा, उसने एस को डिलीट करके बोला जवाब, क्योंकि एस बाद में लगाते हैं, अपन देखेंगे क्यों। आज द सेम क्वेश्चन, और हमने Deepika दीदी, अंडरलाइन किया। what is the main verb here? Suck is a main verb here. Namrata, what is a main verb here? You are mute, Namrata. Suck is the main verb here. अब नम्रता तुम शिवांग से पूछो कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। Shivang, what is the object in this interactive sentence? Didi, there is no object in this interactive sentence. Your voice is echoing whenever you on your mic. It is not echoing to me, Namrata. I think please check your jack pin to your mobile and remove it and connect it again. Sir, whenever Shivang on his mic, then echoing. Now it Beta, is okay. it is not echoing Shivang's voice, or is not echoing to me. Let me ask Deepika. Deepika, is Shivang's voice echoing to you? No, sir. एक्चुअली आप और मैं ईयरफोन नहीं लगाए, इसलिए अपन का सब सही है। आवाज आ भी रही है और फालतू की अपने पास भी नहीं आ रही है। There is some problem, Namrata. You can disconnect and connect again. Yes, sir, I did it. Okay. Deepika Didi, हाँ शिवांग, what are you saying, please? sir, I'm asking for verb. Didi, what should be the verb for choosna? The verb for choosna should be suck. Namrata, what is the second form of suck? Deepika, the second form of suck should be sucked. Shivang, what should be the third form of suck? The third form of suck should be suck. Okay, guys. Speak as it is, or if you want to do creativity, please go ahead. It sucks. That is लाई लुट गई. Deepika Didi. It sucks. That is सब खराब हो गया. Namrata, It sucks.
लाई लुट गई. That is लाई लुट गई. Shivang, what is the Hindi meaning of don't teach? No. Great. Good, you are doing well. I'm making one sentence. Beta, do not do it, otherwise it will suck. बेटा ऐसा मत करो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. I use future simple tense. Okay, I'm asking to Deepika. Deepika, listen carefully. Can it suck in this condition? I think it cannot suck in this condition. दीपिका, क्या ऐसी स्थिति में सब गड़बड़ हो सकता है? मेरी समझ से इस स्थिति में कुछ भी गलत नहीं हो सकता. नम्रता, can you think it sucks? Yes, I think so. It can suck in this condition. नम्रता, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में सब गड़बड़ हो सकता है? यस दीपिका, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कैसी स्थिति में गड़बड़ हो सकता है. शिवांग, कैन यू थिंक सॉरी आई फॉरगॉट. हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये था, कैन इट सक इन दिस कंडीशन? कैन इट सक इन्वर्टेड बनाया था. शिवांग, कैन इट सक इन दिस कंडीशन? Yes, Namrata Didi, it can suck in this condition. क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है ऐसी स्थिति में? हाँ, ऐसी स्थिति में सब गड़बड़ हो सकता है, गोबर हो जाएगा सब. Deepika Wait. Didi, can you guess the Namrata, which chapter is this sentence related? Sir, I don't know. Very nice. Ask the same question to Deepika. Deepika, can you guess which chapter from this sentence? हमारे साथ बोलो. Which chapter Which chapter is is this sentence this sentence related? related? Deepika, which chapter is this sentence related? This sentence is related to negative sentence or present simple sentence. Very nice. Deepika asked the same question to Shivang and ready to listen. Get ready to listen the correct answer. Okay. Okay. Shivang, which chapter is um, which chapter is belongs to this sentence? Sorry, come again. Sir, I forgot the question. No problem. Namrata will help you. Namrata, please. Which chapter Which chapter is is this sentence this sentence related? related? Which Shivang, which chapter is this sentence related? Didi? This sentence is related to present simple. Now you can ask me. Sir, which chapter is this sentence related? This sentence is related to order or request.
पीट लो, सिर पीट लो, बाल नोचे, दोनों जन। नम्रता वॉज एब्सेंट, शी डजंट नो। हालांकि वो ग्रुप में शेयर हुआ है, लेकिन व्यस्तता के कारण देख नहीं पाए होंगे। मैडम हैज शेयर्ड ऑर्डर रिक्वेस्ट 3 videos in the group. And yesterday or day before yesterday, we were talking about order request. चलो, अब सिर पीटने के बाद फ्री हो गए हो तो फिर से एक पूरा राउंड चला लो। सेम क्वेश्चन। Deepika Didi, which chapter is this sentence related? This chapter is related to order and request. Namrata, which chapter which chapter is this sentence related? Deepika, this sentence related to order and request chapter. Namrata, please use is. This sentence is. This sentence is related to order and request chapter. Sivang, can you guess the meaning of this idiom? Yes, Namrata Didi, I can guess the Hindi meaning. The Hindi meaning of this idiom is ज़्यादा ज्ञान ना दो. Deepika Didi, what is the Hindi meaning of this idiom? Do not ask. No, it is done. I have already written. Guys, by English, I think you can better understand. Don't teach your grandmother. यानी अपनी दादी को न सिखाओ to suck eggs. एक्चुअली हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा दोस्तों। हम यहाँ पे भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं और अंडे या तो उबाल के खाते हैं या फिर ऑमलेट बना के। लेकिन जहाँ की परंपरा है, चूंकि वो ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे ठंड से लड़ने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते थे उनको। इस कारण से वो मांसाहारी भी हो गए और शराब का भी सेवन करने लगे। कई बार माइनस से इतना नीचे चला जाता है पारा वहाँ कि खून जमने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो अल्कोहल पीते रहने से खून में गर्मी बनी रहती है और व्यक्ति जिंदा रहता है। कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन तक स्नोफॉल होता रहता है और पूरा घर जो है, अभी हमने कल परसों ही एक वीडियो देखा, बर्फ से चारों तरफ से ऐसा ढक जाता है, दरवाजे पे 7-7 फुट तक बर्फ जम जाती, खुल ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ये लोग हीटर वगैरह घर में लगवाए रहते हैं। जैसे अपने यहाँ एसी का प्रचलन है, वैसे वहाँ हीटर, और उसके साथ उनको अल्कोहल भी लेना होता है। वो लोग अपने लंच डिनर में अल्कोहल लेते हैं और अपने यहाँ उसका दुरुपयोग किया जाने लगा उसको। सर वहां पे किसी के भी घर में फैन नहीं होता, लगवाते ही नहीं वो। हम गए थे एक बार तो देखा था ऐसा। अच्छा, होटल्स वगैरह में भी फैन नहीं थे ही यू नहीं, और विजिटेड जरूरत भी नहीं थी। यू विजिटेड अमेरिका, यूएसए? अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने इंडिया में शिमला वगैरह की बात कर रही हूँ सर। ओके, वहां पे ऐसा है। ओके। इसके अलावा मेरे हस्बैंड गए हैं अब्रॉड भी, विजिट करके आए हैं, उन्होंने भी वहां का बताया, वहां पे भी ऐसा ही रहता है। तो वहां पे अंडे को ऐसा ऊपर से तोड़ के हल्का सा छील लेते हैं और ऐसे उसको चूस लिया जाता है, उससे उस शरीर में गर्मी प्रदान करता है, लेकिन ओरिजिनल। तो इससे ये मुहावरे का वहां पे जन्म हुआ। स्पीक वन बाय वन। हु विल स्टार्ट? दीपिका। डोंट टीच योर ग्रैंडमदर टू सक एग्स, ज्यादा ज्ञान ना दो। नम्रता। Yeah, I said to you, don't teach your grandmother to suck egg.
या मैंने तुमसे कहा ना ज्यादा ज्ञान मत दो। दीदी stupid mistake. या there is a problem I am feeling with Shivang's side. The voice was breaking kind of. डोंट टीच योर ग्रैंड मदर टू सक्स एग। No, sorry. डोंट टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स। ज्यादा ज्ञान ना दो। दैट इज ज्यादा ज्ञान ना दो, ज्यादा ज्ञान ना बांटो। शिवांग। Don't teach your grandmother to suck eggs. That is ज़्यादा ज्ञान ना दो। Deepika, have you written this? Yes, sir, I have written that. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Namrata, have you written this? Yes, Deepika, I have written that. Should I erase? Yeah, of course you should erase. Shivang, have you written that? Yes, Namrata Didi, I have written that. It's already erased. दोस्तों आपने यहाँ मंत्र लिखा होगा फर्स्ट पेज पे जैसा हमने बताया था, फिर यहाँ मिसलेनियस, यहाँ WH वर्ड्स, फिर यहाँ कैन हेडिंग, फिर यहाँ कुड, राइट। यहाँ पे एक पेज पलटिए, अगले चैप्टर में हम कदम रख रहे हैं राइट साइड पेज पे। कम टू योर राइट साइड पेज, टर्न ओनली वन पेज and write down this heading. दीपिका, तुम्हें याद है तुम बिल्कुल शुरू से आई थी जब कैन चैप्टर दिया था कि निकल गए? नहीं सर, मैं शुरू से आई थी। तो बताओ, जब हमने कैन चैप्टर की हेडिंग दी थी तो क्या करवाया था, कुछ याद हो तो? फॉर्मूला लिखवाया था। अच्छा, तुम्हें ऐसा याद है। नम्रता तुम बताओ। सर फॉर्मूला लिखवाया था। हमने सीधे सीधे लिखवा दिया था क्या बेटा? नहीं सर, एग्जाम्पल दिया था। चलो शिवांग से पूछ के कंफर्म करते हैं। शिवांग, अपन लोग हमेशा क्या करते हैं, हम सर हम लोग से फॉर्मूला बनवाते हैं। ये सही जवाब था। मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि वॉइस समटाइम्स प्रॉब्लम होती है। हम बच्चों की मदद लेते हैं फार्मूला बनाने के लिए, वो एक एक करके बोलते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं। हमेशा यही प्रोसेस रहती है, इससे उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अगर हम सीधे सीधे दे देंगे तो वो ऐसा थोपना जैसा, ये हमारा मानना है। जरूरी नहीं है कि आप इस हमारी हर चीज से सहमत हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम एक और नई प्रोसेस आज खेलने जा रहे हैं, एक नया गेम। आज हम आपको फॉर्मूला भी नहीं लिखवा रहे हैं। आज आप और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की ओर कदम बढ़ाइए। आज बिना फॉर्मूले के सेंटेंस आप बनाइए। सही हो गलत हो हमें इससे मतलब नहीं, कुछ देर में वो सही हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। दीपिका बताओ, हर बार हर चैप्टर शुरू करते समय हम लोग पहला राउंड कैसे खेलते हैं? आई से। वेरी नाइस। और नम्रता तुम बताओ, दूसरा राउंड? यू। नहीं, शिवांग बताएगा।
जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट रखवाते हैं, सबसे बदलवाते हैं, सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट रखते हैं। आज हम इस प्रोसेस में भी परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मात्र 3 लोग मौजूद हैं, तो जल्दी जल्दी सबको मौका मिल जाएगा। आज हम तुम्हारे जहन से 27 साल से बैठी हुई हिंदीकरण की धारणा को भी तोड़ने जा रहे हैं, और वो भी तुम्हारे माध्यम से। हम नहीं बताएंगे, निकलवाएंगे तुम्हारे ही मुखार बिंदु से। अगेन पावर इज कट, इट इज बैक, अरे कट अगेन। नम्रता, यू आर इन जबलपुर, नो? Yes, sir. Sir, power is not cut. Actually, I don't know what is going on my phone. ओके Automatic light system fluctuate here. Yeah. ओके ओके। और आज हम वैसा रंग नहीं खेल रहे, हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट लिखेंगे। पहला सब्जेक्ट हम दीपिका को देंगे, हम व्यक्ति के हिसाब से सब्जेक्ट देंगे, आपको उससे सेंटेंस बनाना है। और आप चाहे तो अफर्मेटिव बना सकते हैं, इन्वर्टेड, नेगेटिव, WH, जो आपकी मर्जी है। कैटेगरी आप अपने मन से ले सकते हैं। और संयोग से पहला सब्जेक्ट हम आज ले रहे हैं, दीपिका को एक सेंटेंस बनाना है। सर, वर्ब आप ये वर्ब मन हेल्पिंग। से, चलिए। वर्ब आपको आई मन से। आई शुड कंट्रोल माय टंग, टेम्पर एंड टेम्पटेशन। मुझे मेरी वाणी पे, मेरे गुस्से पर और प्रलोभन पर नियंत्रण रखना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, हम हिंदी में फंसे होने के कारण इंग्लिश नहीं बोल पाए, वरना इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश इज रादर इजी लैंग्वेज। सी, यू कैन सी द चेंज ऑफ हिंदी। आई का हिंदी ऑटोमेटिकली बदल के यहाँ मुझे हो गया, जो कि मैंने नहीं बताया, खुद दीपिका के मुंह से निकला। अब शिवांग की बारी है, तो हम शिवांग को शिवांग के हिसाब से थोड़ा भारी सब्जेक्ट देंगे। Some of them should be independent. उनमें से किसी को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं वो हिंदी पहले लिखूंगा जो इसका होता है, फिर ब्रैकेट लगा के वो हिंदी लिखूंगा जो उचित है। तब तक दीपिका तुम भी तब तक नम्रता तुम भी इससे एक सेंटेंस बनाना। You are mute, दीदी। Some of them can take them decision. उनमें कुछ लोग खुद का डिसीजन लेना चाहिए। Some of them should take decision. उनमें अब से ये किसी ना को डिसीजन लेना अच्छा चाहिए। सही बात कर दिया, यही हमने इससे बाहर आना था, कोई बात नहीं। अब हम नम्रता को एक सरल सा सब्जेक्ट देते हैं, बाकी सब सामने मौजूद है। नम्रता, योर सब्जेक्ट इज यू। You can conquer this. You should conquer this difficult situation. तुम इस
ये है। तुम्हें हाँ इस हाँ, समस्या से विजय पाना चाहिए, पर विजय पाना चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा दीपिका, लेकिन हम दोबारा यहाँ यू लिखने जा रहे हैं, कॉमन सेंस से सोच के बनाना सही। You should do your work with your own. आपको अपना काम खुद करना चाहिए। अगर कोई टीचर ऐसा लिखवाता है और बच्चों को धमकाता है कि बेटा लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बेवकूफी है ये सब ऐसा लिख लेना। अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो वो ना करे। क्यों बच्चे, उसका कारण अभी हम यहाँ पे शुड को मिटा के कुछ दूसरे चैप्टर का नाम डाल देंगे, ये सब के सब बदल जाए। तो क्या ऐसे हर बार लिखते चलोगे? पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। इंसान के पास कॉमन सेंस होता है, उसका बस प्रयोग करें। हाँ, बट देयर इज वन वेरी नाइस कोटेशन आई रेड समवेयर और आई हर्ड, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज। तो ये दोबारा हमने जैसा लिखा था और अपेक्षा की थी कि दीपिका कर लेगी, उसने कर लिया, थैंक यू। तो यहाँ पे आपसे हो गया आपको, अब शिवांग की बारी है। शिवांग को हम वन ऑफ अस शुड सर्व। हम में से किसी को भी सर्व करना चाहिए, परोसना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है आपने सुना ना हो, अब तो शिवांग भी थोड़ा सा लड़खड़ाया। चलो, पहला राउंड था, सबने लकीर के फकीर का पालन किया। डोंट यू थिंक कि यार अब तो कैटेगरी बदलने, दूसरा राउंड चालू हो गया है। इतनी सारी सिखा दी हमने कैटेगरी, आपको 4 सिखा दी। So should one of us ऐसे रट्टा नहीं मारो कि अफर्मेटिव के बाद इन्वर्टेड आता है, इससे नेगेटिव सेंटेंस बड़ा खूबसूरत बनेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, हम शिवांग के साथ से भारी भारी सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसलिए वो लड़खड़ा रहा है। one of us should not play well। हम में से कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा नहीं। हमने उसका वो हिंदी लिखा है जो राधा साहब इसलिए सामने खड़े हैं कि दिखाई देते। कॉमन सेंस। सर, may I try? Should I try? प्लीज। हम में से एक नम्रता, लेट नम्रता ट्राई। One of us should initiate this quiz। हम में से किसी एक को इस क्विज को की शुरुआत करनी चाहिए। Should I एक try? सेंटेंस तुम भी दीपिका। Should one of us have it?
क्या हम में से कोई ये ले ले? ल- क्या हम में से किसी को ये ले लेना चाहिए? नो दीपिका दीदी, वन ऑफ अस शुड नॉट हैव इट। नहीं दीपिका दीदी, हम में से किसी को ये नहीं लेना चाहिए। Whose turn is this? इट्स दीपिका's दीदी टर्न। It's Deepika Didi's turn. She should she should be punctual. uh, उसे पंक्चुअल होना चाहिए। नम्रता। we should we should try to give our best. हमें अच्छा देने का प्रयत्न करना चाहिए। दे शुड बोलना नम्रता। We should try we should try to give our best. to give our best. हमें we अपनी should तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। we should try our best. शिवांग। दे शुड लिसन केयरफुली। उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। दीपिका दीदी। people should people should not uh, people should be aware. नम्रता। प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस। लोगों को शिवांगी, तो हम 3-3 का देने वाले थे दोनों को। सॉरी दीपिका, कम अगेन। people should be aware. लोगों को जागरूक रहना चाहिए। नम्रता। एवरीबडी शुड कीप पेशेंस। हर किसी को पेशेंस रखना चाहिए। शिवांग। Also to not get success in this field। सभी कुछ भी यार, without thinking anything। चलो हम एक बना देते हैं, लेकिन हम इससे बनाएंगे। Where should we perform this नुक्कड़ नाटक? हमें ये वाला नुक्कड़ नाटक कहाँ पे करना चाहिए? Where should we perform this नुक्कड़ नाटक? हमें ये वाला नुक्कड़ नाटक कहाँ पे करना चाहिए? I think we should perform this नुक्कड़ नाटक in मालवीय चौक। मेरे ख्याल से हमें ये मालवीय चौक पे करना चाहिए। अब से रहा नहीं क्या कैटेगरी के नाम पे वही इन्वर्टेड नेगेटिव अफर्मेटिव में सारी भेड़ें एक गड्ढे में गिर रही थी। 4 WH लिखवाए हैं या 5?
I have given you 5 English words. चलो किसी से भी एक बनाना, और बल्कि ऐसा Good morning. टाइम तो हो गया है काफी, तो तुम लोग सेंटेंसेस व्हाट्सएप करना, और हिंदी टाइपिंग अगर नहीं हो तो ये चीज बताना। हिंदी टाइपिंग हिंदी में कर लेती हो नम्रता, दीपिका? सर ये वाले फोन में प्रॉब्लम जाता है मेरे को। तो फिर ऐसा करना, हरा बटन दबा के और ठीक है, ओके इंग्लिश सर। टाइप करना, उसके नीचे उसका हिंदी बोल के सर सेंड कर एवरीबॉडी से एक बना दूं मैं? बना दे। एवरीबॉडी शुड मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। हर किसी को संसार में शांति कायम रखनी चाहिए। वेरी नाइस। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। Google is not taking, they use it, the Britishers. Amen, amen, amen. Amen, amen, Pagala. So, you can continue on WhatsApp. I will check. Thank you. Take care, dinners. Bye.